اس کے سب دوست اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے۔ وہ خوش تھی کہ سب نے اسے یاد رکھا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی یہ بتا نہ سکی کہ اس نے سب کو کتنا یاد کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مورگن کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، تو چلیے پھر۔ وہ سویڈن کا پانی پی کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آیا تھا۔ کہاں؟ ہوم کمنگ ڈرنک کے لیے۔ جو چاہ چکے تھے، انہوں نے جو مانچسٹر میں رہ چکے تھے ہوم کمنگ ڈرنک پی تھی۔ کھانے پینے کا اچھا انداز تھا۔ میں کسی ایسی ڈرنک کو نہیں جانتی۔ وہ صاف مکر گئی، جبکہ وہ ویرا اینون کو پلا چکی تھی۔ نہیں جانتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹونی ولسن کہتا ہے، "This is Manchester, we do things differently here." تو جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اسے بھی مختلف انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تم مانچسٹر میں ہو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ صرف 2 پاؤنڈ کی کاکٹیل اور بس۔ یقیناً اسے صرف ڈرنک سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے 2 پاؤنڈ کے کاکٹیل کے لیے قریبی کیفے میں لے آئی، جہاں اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس 2 پاؤنڈ کے کاکٹیل پی رہے تھے۔ نئے سال کے لیے کیا کیا عہد و پیمان کیے ہیں تم نے؟ سستی نہ کرنا اور وقت پر نوٹس بنانا، دوسرے سیمسٹر میں 80% رزلٹ لانا۔ عزم سے کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن امرہ نے تو کوئی لطیفہ نہیں سنایا تھا۔ اب تم ہنسے کیوں؟ کیونکہ تحقیق کہتی ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خود سے کیے عہد کو بھلا دیتے ہیں، اور باقی کے 40% سے زیادہ افراد یہ کام 6 ماہ کے اندر کر گزرتے ہیں۔ میں ان 60% میں سے ہوں، نہ ہی 40% میں سے۔ اس نے عزم سے کہا، مجھے فخر ہے تم پر۔ اس نے اسے چڑھایا۔ 2 پاؤنڈ کی ڈرنک وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ تم دیکھ لینا، میں شاندار کامیابی حاصل کروں گی۔ اس نے گردن اکڑائی۔ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ سویڈن کا پانی اسے بری طرح سے راس آیا تھا۔ تم مجھے چیلنج دے رہے ہو؟ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں۔ ٹیبل پر مکہ مار کر اس نے کہا، اگر میں جیت گئی؟ امرہ نے انگلی اٹھا کر کہا، مشکل ہے۔ اگر میں جیت گئی بولو پھر؟ ناممکن ہے۔ دونوں شانے نہ میں ہلائے۔ امرہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پاکستان میں ایسے موقع پر کہا جاتا ہے، تمہارے منہ میں خاک۔ وہ یہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ وہ گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک جانا ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا نالائق سمجھتا تھا وہ امرہ کو۔ ٹھیک ہے، پھر 1.5 سال بعد ملتے ہیں، اسی میز پر تیار رہنا پھندا ڈالنے کے لیے۔ مطلب تم 1.5 سال تک مجھ سے ملو گی نہیں؟ میں چیلنج واپس لیتا ہوں۔ مطلب اس معاملے کو ہم 1.5 سال بعد دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرانے لگا، چڑھانے والی مسکراہٹ۔ یہ انگریز خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں سب یہی کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، سب کر سکتے ہیں ہم۔ خیر، امرہ دیکھ لے گی اس انگریز کو۔ اب یونیورسٹی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ 17 جنوری سے امتحانات شروع تھے۔ سب دن رات پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے، تو ابھی امتحانات میں 1 ہفتہ تھا کہ جنوری کی برف باری میں ایران کا محسن رسولی اور مصر کا موسیٰ فٹ بال کھیلنا چاہتے تھے۔ امتحان تو پھر آ جائیں گے، بلکہ سال میں 2 بار، لیکن ایسی گجب کی 100 سالہ ریکارڈ توڑتی برف باری شاید پھر نہ آئے۔ ایرانی اور مصرین یقیناً سوتے میں بھی خود کو فٹ بال کھیلتے پاتے ہوں گے، اور اپنی زندگی کے خاص دن، شادی پر بھی فٹ بال کھیلنے کے بلاوے کو رد نہیں کر سکتے ہوں گے۔ محسن رسولی نے 2 ٹیمیں جمع کر لی تھی میچ کے لیے۔ برف سے اٹے گراؤنڈ میں رات کو میچ تھا، برف کا ڈھیر اور اس پر فٹ بال میچ۔ واہ، تم بھی میرے ساتھ کھیلو گی؟ ویرا نے کہا۔ امرہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تمہاری جان پر؟ ویرا نے گھونسا مارا اس کی کمر پر۔ میں نے کبھی موبائل پر فٹ بال گیم نہیں کھیلی۔ تم مجھے برف پر خونخوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کو کہہ رہی ہو؟ یعنی میری موت برف پر واقع ہونی ہے؟ تو کون سا کھیل کھیلتی ہو تم؟ ویرا ایک اور گھونسا مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ لوڈو دادا کے ساتھ
कभी कभी क्रिकेट, वो भी अगर कोई बच्चा गेंद करवाए आहिस्ता से तो मैं बल्ला चला लेती हूँ। टेनिस बॉल से, हार्ड बॉल से बिल्कुल नहीं। तो तुम लड़कियां फारिग वक्त में करती क्या हो पाकिस्तान में? साइकिल तुम नहीं चलाती, दौड़ लगाने के लिए तुम्हें कहा तो तुमने इनकार कर दिया था। कोई गेम भी तुम्हें नहीं आती, खाने के अलावा कुछ करना आता है? हाँ ना, चुगलियां करना और बात बात पर लड़ना। अमरा ने उर्दू में कहा और हंसने लगी। तो इम्तिहानात 6 दिन बाद शुरू थे और वो मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों में एक वीरा थी और एक लॉ डिपार्टमेंट की विक्टोरिया। विक्टोरिया कॉल की टीम में थी और वीरा मोहसिन रसूली की टीम में। जिस तरह की बम्बार खिलाड़ी वीरा थी, उसे दोनों टीम शामिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन वीरा ने चालाकी की। उसने मोहसिन रसूली की टीम में शमूलियत की। मोहसिन रसूली यूनिवर्सिटी में अपने फुटबॉल के लिए ही तो मशहूर था और यूं उसके इम्कानात रोशन थे मैच जीतने के। 100-200 के करीब स्टूडेंट्स आए थे मैच देखने। दस्ताने पहने, मफलर लपेटे, कॉफी पीते, मुंह से भाप उड़ाते, हर गोल पर ग्राउंड को सर पर उठा लेने वाले। अमरा को भी पढ़ना था, लेकिन वो वीरा के लिए आ गई थी और अच्छा ही किया आ गई, वरना बर्फ के ढेर पर फुटबॉल के साथ बमबारी करती, वीरा को कैसे देखती। मैच शुरू हो गया। अमरा का हलक बैठ गया था चिल्ला चिल्ला कर। वीरा को बर्फ के ढेर पर फुटबॉल के साथ ऐसे भाग रही थी जैसे लाउंज में कारपेट पर भाग रही हो। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि वो बर्फ में खुद को दफन कर लेगी, लेकिन हारेगी नहीं। कार्ल ने पहला गोल किया था और वीरा ने उसे ऐसे देखा था जैसे उसकी गर्दन दबोच लेगी, और उसने गर्दन दबोच ली थी। उसने यके बाद दीगरे 2 गोल किए थे। मुखालिफ टीम की कमर तोड़ डाली थी। वो प्रेशर में आए और बहुत मुश्किल से एक और गोल करके हार गए। वीरा और स्टूडेंट्स ने ग्राउंड सर पर उठा लिया। वीरा ने डेविड बेकहम की बेनियाजी और मेसी की छुपी रुस्तमी के लिए स्टूडेंट्स को देखकर हाथ लहराया और अपनी दाएं आंख के किनारे को रगड़कर कार को देखकर आंख मार दी। कार को तो आग ही लग गई। यूं कार की टीम कार की तरह गुस्से में आकर भड़क गई, और शायद वीरा यही चाहती थी। वो भड़क भड़क कर बर्फ पर गिरते जाते थे। मोहसिन रसूली की टीम फुटबॉल के लिए उड़ी उड़ी जाती थी। वीरा बर्फ की पैदावार थी, उसे बर्फ पर हराना मुश्किल था। ये उसकी बेइज्जती होती और उसने रूस की बर्फ की इज्जत रख ली। वो लोग 3-2 से मैच जीत गए। अमरा को बड़ी खुशी हुई, वीरा के जीतने की नहीं, कार्ल के हारने की। वो सब लोग ग्राउंड के गिर्द घेरा बनाए खड़े दोनों टीमों का मैच देख रहे थे। मैच खत्म हुआ तो सबको फिर से पढ़ाई याद आ गई और सब जल्दी जल्दी खिसकने लगे। अब अमरा नेट के पास खड़ी मुंह खोले हंस रही थी। उसका जी चाह रहा था वीरा को कंधा पर उठा ले, वरना कार्ल को ही उठाकर फेंक दे, और नहीं तो पेट पकड़कर बर्फ पर लोटपोट होकर खूब हंसे। कुछ मैच उसने दादा को भी दिखाया था और वो भी वीरा वीरा चिल्लाकर लाहौर में बैठे वीरा का हौसला बढ़ाते रहे थे। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काफी संजीदा लग रहा था, जैसे हार के बाद लोग लगा करते हैं। हाँ, आ रही है। अमरा ने मुंह खोलकर एक और कहका लगाया। बुरा किया। आंखों को चुंधियाकर कार्ल ने उससे ताड़ा, जैसे कहा, अच्छा तुम ठीक है फिर? वैसे भी बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो चलो आज ही सही। वो चंद कदम आगे बढ़ा। अमरा वीरा की तरफ जाने ही लगी थी। उसका ध्यान कार्ल की तरफ नहीं था। कार्ल ने एकदम से पलटकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर हाथ में पकड़े फुटबॉल को दे मारा। अमरा तवाज़ुन कायम न रख सकी और गिर गई। जैसे ही वो गिरी, कार्ल ने तेजी से उसके सर पर जमी सुर्खूनी टोपी को खींचकर उसकी नाक तक घसीट दिया। जी, नाक तक? ये क्या बदतमीजी है? अमरा चिल्लाई। ये भी बुरा किया अमरा ने। कार्ल ने मुट्ठी भर बर्फ उसके चिल्लाते मुंह में ठूंस दी। अमरा ने हाथ से बर्फ मुंह से निकाली। कार्ल ने तेजी से अपने गले में से ऊनी मफलर को निकालकर उसकी गिरह बनाकर उसके दोनों हाथों में डाली और गिरह कस दी। वो जो उठने की कोशिश कर रही थी, वो लड़क गई। ये क्या? टोपी नाक तक, बर्फ मुंह में, हाथ बंधे हुए।
अब कार्ल ने किसी मशीन की तरह उस पर बर्फ उछालनी शुरू कर दी। अमरा बामुश्किल मुंह से बर्फ उगल सकी। उसके दांत ठंड से टूट जाने के करीब थे और कार्ल मनहूस उसे बर्फ के ढेर में दफन कर रहा था, क्योंकि वो खुलेआम मुंह खोलकर हंस रही थी। अब जाहिर है हारे हुए लोगों को ऐसी हंसी बुरी भी लग सकती है। वीरा, अमरा बामुश्किल चिल्लाई। वीरा जरा दूर मोहसिन रसूली के साथ मैच की सूरत-ए-हाल पर गौर कर रखी थी। अमरा की तरफ उसकी पुश्त थी। कार्ल किसी क्रेन की तरह उस पर बर्फ उछालता ही जा रहा था और उसने अमरा को बर्फ के ढेर में दफना दिया। देखते ही देखते अमरा बर्फ में। ये दिन भी देखना था अमरा ने। जा अमरा, तेरा कोई हाल नहीं। वीरा, वो फिर से चिल्लाई। उसकी आंखों पर टोपी थी। उसे नजर नहीं आ रहा था कि वीरा कहाँ है। बर्फ का एक ढेर उसके मुंह पर आ गिरा के लो और चिल्लाओ। काश दादी का कहा सच होता, वो वाकई ही मनहूस होती और कार्ल के हाथ टूट जाते। उसके साथ ये सब करते। कार्ल, वीरा की धार सुनाई दी। उसने बढ़कर अमरा के सर पर से टोपी उठाई और अमरा ने देखा कि वीरा ने एक बेहद नाकाम कोशिश की अपनी हंसी को रोकने की। वो गर्दन तक बर्फ में धंस चुकी थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी, होंठ नीले और खुद वो गुस्से से नीली पीली लाल सब हो रखी थी। जैसे ही वीरा ने टोपी उठाई, कार्ल और वीरा दोनों के कहके लापरवाह परिंदों की तरह फिर से उड़े और उड़ते ही रहे। दादा, आप ठीक कहते हैं, मुझे अमरा नहीं वीरा होना चाहिए। अमरा ने दिल में सोचा। जब वीरा उसे बर्फ से निकाल कर खड़ा कर चुकी तो कार्ल ने अमरा की तरफ इशारा किया। मैच हो जाए, तुम और मैं। क्या बात की थी कार्ल ने, वो भी अमरा से। उसे फुटबॉल नहीं आता, मुझसे बात करो। तुम परे रहो जिंजर बॉल, मुझे उस दी लॉस्ट डक से बात करने दो। दी लॉस्ट डक चुप कार्ल की शक्ल देखने लगी। गुस्से में इतना लाल पीला होने के बावजूद वो उसके खिलाफ कुछ न कर सकी। अफसोस, 20-25 फुट के फासले से हम एक दूसरे के सर पर फुटबॉल की किक लगाएंगे। वक्त 10 मिनट। बोलो। प्लूटो, सर पर लगा बॉल एक गोल होगा। प्लूटो, एक और नाम। प्लूटो खामोश खड़ा अंदाजा लगा रहा था कि क्या वो कर सकती है। नहीं, वो ये भी नहीं कर सकती थी। अंदाजा लगाया जा चुका था। चलो उसे और आसान कर लेते हैं। फासला 15 फुट, वक्त 10 मिनट। नहीं, अमरा ने इनकार करके जान छुड़ाई। फासला 10 फुट। वो आज हर सूरत उसके सर पर किक लगाना चाहता था। नहीं, अमरा ने ऐसे कहा जैसे शाह ईरान उसे अपना तख्त पेश करते हो कि आज से आप उसे संभालें, और वो कहती हो, नहीं भाई, बस नहीं, कह दिया ना, बस नहीं। नहीं। कार्ल ने बाजिया दांत पर दांत जमाए और गुस्से को छुपाकर उसकी तरफ देखा कि वो ये भी नहीं कर सकती जो 5 साल के बच्चे भी करके जीत सकते हैं। कार्ल को बस मौका चाहिए था उसका सर फोड़ने का, उससे बर्फ की मार मारने का। चलो 10 कदम। हारने वाले को बर्फ में गर्दन तक सुबह तक धंसे रहना होगा। जिंजर बॉल ने अमरा को आंख मारी के खेल लो, पर पागल थी क्या वो? अभी शेर के मुंह में हाथ डालने की हैसियत नहीं हुई थी उसकी। अमरा के लिए मैं खेलती हूँ। वीरा ने हाथ उठाया। तुम्हारे लिए खेल बदल जाएगा। 20 फुट का फासला रखकर भागते हुए हाथ से हमें सर पर बॉल मारनी होगी। वक्त 10 मिनट। ठीक है। शाह ईरान का तख्त वीरा ने कबूल किया। स्टॉप वॉच अमरा को देकर उनका खेल शुरू हो गया। 20 फुट का फासला रखकर फुटबॉल को दरमियान में रख दिया गया। फुटबॉल पर पहले कार्ल झपटा। वीरा भागी, लेकिन कार्ल ने फुर्ती से उसके सर पर बॉल दे मारी। फिर बॉल वीरा के हाथ आ गई। उसने कार्ल का निशाना लिया, लेकिन कार्ल जुल दे गया। बॉल कार्ल के हाथ आ गई। वीरा को बॉल को अपने सर पर लगने से बचाना भी था और बॉल को अपने काबू में भी करना था। बर्फ पर फिसलते गिरते बॉल पर झपटने, मुकाबला 90 मिनट में 5-4 था। कार्ल 5, वीरा 4। 10वें मिनट में कार्ल ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से चकरा कर बर्फ पर गिरी। आखिरी मिनट। अमरा चिल्लाई। वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज्यादा से ज्यादा एक ही गोल कर सकती थी ना। ग्राउंड में चंद स्टूडेंट्स मौजूद थे जो वीरा
और कार की मस्तियां देख रहे थे। उनका ख्याल था वो मजाक मजाक में कोई खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड अमरा फिर जोर से चिल्लाई। वो भागते भागते वीरा के करीब जा चुकी थी। कार उनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। उसने कार के सर पर दे मारी, लेकिन कार फिर बच गया और वो बॉल पर झपटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा ही रहा था कि वीरा फूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, अमरा भाग। कहते हुए वो खुद भी बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरा भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा के कहते ही उसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरा, वीरा फिर चिल्लाई। कार उनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह लपका। अमरा ने अपनी लाहौर में खाई खुराकें जिंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी। लेकिन कहाँ वीरा, कहाँ अमरा। अमरा बर्फानी चीता थोड़ी ही थे। जितनी मर्जी सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाई हुई, उनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया था ना। भागी तो कभी नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उससे बर्फ मिली थी, न कार नामी बला जो उनके पीछे भाग रही थी। वीरा के साथ भागते अमरा मुंह के बल गिरते गिरते कई बार बची। अमरा गिर जाती, मौत उससे पीछे से आ लेती तो बहुत ही बुरा होता। कार कहीं पीछे बर्फ पर फिसल कर गिर गया था, वरना वो उनसे 10 कदम पीछे न होता। वीरा अपनी साइकिल पर झपटी और उसे चिल्लाया। अमरा चलती साइकिल पर बैठी। वीरा ने ही उसे चलती साइकिल पर बैठना और उतरना सिखाया था। उसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती हैं। इमरजेंसी कार में ये बात काफी काम आ रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को सुपर स्विंग बनाया और ये उड़ा दिया। वीरा, कार की आवाज उनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया, कौन वीरा? वीरा चिल्लाई और ये जा वो जा। जब वो कार की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस कर उनका बुरा हाल था। बर्फ से ढके छुपके मैनचेस्टर में उनकी हंसी के कमकमे जल बुझ रहे थे। अमरा शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इतना हंसी होगी। उसका पेट फटने के करीब था। तुम हार कैसे गई? अमरा ने उसकी कमर में चुटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू जिंजर बॉल, कभी इंसान हार भी तो जाता है ना। वैसे अगर मैं जीत जाती तो कार ने भाग जाना था। हम उस जिन को बर्फ में धंसा सकते थे भला। मेरी दादी का मानना है मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है, तबाही बर्बादी, ऐसा सब हो जाता है। अमरा दरअसल उससे अपने हारने की वजह बता रही थी। अच्छा, तुम तो बड़े काम की हो। फिर तुम व्हाइट हाउस के सामने घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब बराबर क्यों नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई ही वैसी ही हो तो सच हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका चुका तो रोजाना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें। गार्ड ऑफ ऑनर? अमरा फिर से हंसते हंसते बेहाल होने लगी। उसकी नहूसत को गार्ड ऑफ ऑनर कमाल हो गया। ये मेरी जिंदगी का बहुत बेहतरीन वक्त है वीरा। तुम हो, मैं हूँ, बर्फ है, मैनचेस्टर है और तुम्हारी साइकिल है। मेरे लिए इतने खजाने थे जिंदगी के बाद। सबसे बड़ा खजाना कार। हंसते हंसते वीरा साइकिल गिरा बैठी। दोनों सड़क पर गिर गईं। उन्हें हल्की सी चोट भी आई, लेकिन उस चोट की परवाह किससे थी? वो दोनों तो सड़क पर गिरी साइकिल के पास हंसने में मसरूफ थी। कार का नाम लेते ही हम गिर गए। उफ, असल में मनहूस तो कार है। अमरा को बड़ी खुशी हुई कार को मनहूस साबित करके। उसने जैसे अपने मनहूस होने का बदला कार से लिया और अपनी सारी रोशन ख्याली के बावजूद वो दादी की तरह पूरा जोर लगाकर कार को मनहूस साबित करने के लिए भी तैयार थी, बल्कि उस काम के लिए पार्ट टाइम करने के लिए भी तैयार थी। सारी यूनिवर्सिटी अमरा के खानदान की तरह जब उसे मनहूस मनहूस कहा करेगी तो अमरा के अंदर ठंडक की ठंडक फैल जाया करेगी। काश ये दिन देखना अमरा के नसीब में हो। काश ये दिन जल्दी आ जाए, बल्कि आने ही वाला हो जब सब क्या करें कार दी मनहूस मारा।